Hey guys, good evening and good afternoon and welcome to the class. I hope all of you are doing really good and really well. Hi Mukti, hi Eti, good afternoon beta. Welcome to the class. I hope all of you are doing really good. Umang, hi, good afternoon, good afternoon. Shiva, good afternoon. What's up? Hi everyone. Sab badhiya? I hope so. Yeah? Come on, jaldi se everyone. I want all of you to settle down quickly so that we can start the class. Okay, so guys, good afternoon से हाँ, hi Hemang. तो बेटा बहुत लोग, a lot of you were asking actually about this NCERT explainer videos. I used to send NCERT explainer in the beginning of the session, है ना? And a lot of you wanted more. Abhishek, hi. So that is why what we have done is I have organized a 5 दिन का series starting today, Monday, Tuesday, Friday, Saturday, Sunday. 5 दिन में पूरी NCERT का biology portion हम cover करेंगे, right? If you guys are confused about the days, मैं पहले आपको days ही दिखा दूं, ठीक है? Let me first show you the days because शायद उसमें अगर confusion किसी को है, so let me show you the days. So guys, आज हमारी क्लास 1 है, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस 1, दैट इज न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन. कल होगा ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, फिर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड आवर एनवायरनमेंट. तो 5 दिन में व्हेन आर दीज गोइंग टू हैपन? दिस विल हैपन मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, राइट? तो 5 दिन में इंटायर 5 डेज में पूरा का पूरा एनसीईआरटी के सारे हिडन स्टेटमेंट्स हमें कवर करने हैं, ठीक है? वीडियो बेटा आएगा, वीडियो आएगा, आप देखो वीडियो आएगा. आपके तरफ अगर इंटरनेट का इश्यू होता है तो वीडियो में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? तो चले, लेट अस जंप टू एनसीईआरटी नाउ. व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, है ना? चलो एवरीवन प्लीज टेक आउट योर एनसीईआरटीज. कोशिश कीजिए आप सब अपनी अपनी एनसीईआरटी निकाल लें, राइट? क्विकली टेक आउट योर एनसीईआरटीज एंड आई विल ट्राई, सॉरी, या okay, so I will try to go via this. I hope अब ये सही दिख रहा है, right? Most of you can see, read the text. Can you read the text very clearly? Can you read the text very clearly बेटा? और बड़ा करना है तो I'll do that. I'll do और बड़ा if you want. चलो, okay. So let's quickly begin without wasting any further time, है ना? बिना time waste किए जल्दी से पढ़ते हैं. So how do we tell the difference between what is alive and what is not? So NCERT's very first point is what is life. NCERT सबसे पहले यही आपको पढ़ाना चाहती है कि life क्या है, right? So if we see a dog running, cow chewing, man shouting loud, we know that these are living beings. We would still think that they are alive, but how do we know that? We see them breathing. We know that they are alive. What about plants? We don't see them breathing. We see green. Some of us will say plants have leaves of colors other than green as well. Even they are alive, right? So in other words, NCERT says, how do we define living? So we say they are some sort of movement. Movement growth हो सकता है, not related to growth हो सकता है, और कई बार विदाउट विजिबल मूवमेंट. सो एनसीईआरटी सेज कि अगर आप मूवमेंट को कैरेक्टरिस्टिक्स बनाओगे तो अ लॉट ऑफ थिंग्स मूव बट नॉट विजिबली, आप उन्हें देख नहीं सकते, राइट? So visible movement, using visible movement as the defining characteristic of life is not enough. यहां पे assertion reason question आ सकता है. assertion reason कैसा आएगा? Plants and animals are living organisms. reason दिया गया होगा they show visible movement. आपको पता है assertion is correct, reason is wrong. reason क्यों गलत है बेटा? क्योंकि visible movement is not a characteristic of life. It is not enough. This is a statement जो आपकी NCERT खुद बोलती है. Movement over small scales will be invisible to eye. Movement of molecules. If we ask this question to professional biologists, they will say yes. Viruses do not show any molecular movement in them. That is partly why there is a controversy. Why are they alive or not? So सबसे पहले NCERT decides. सबसे पहले NCERT says, tells you that molecular movement, है ना? Molecular movement is the characteristic of life. NCERT ने पहले
यही बता दिया आपको कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट कैरेक्टरिस्टिक है लाइफ का। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, राइट गाइज जो लोग लेट आ रहे हैं प्लीज थोड़ा सेटल डाउन हो जाए। आई माइट नॉट बी एबल टू एड्रेस यू पीपल राइट नाउ। थोड़ा सा पे अटेंशन, टेक आउट योर एनसीईआरटी, पे अटेंशन एंड ट्राई, डोंट वरी, यू विल हैव द रिकॉर्डेड लेक्चर्स एज वेल शायद, राइट। नाउ द सेकेंड पॉइंट एनसीईआरटी वांट्स यू टू अंडरस्टैंड इज व्हाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ। हम ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट कर ही क्यों रहे हैं, राइट। तो एनसीईआरटी सेज living organisms are well organized structures, second characteristic of life। ठीक है, ये क्या है, second characteristic of life। and what is the second characteristic? सारे living organisms are well organized structures। and यही तो बात है 9th स्टैंडर्ड में हम पढ़ कर आते हैं, perfectly organized cell wall, DNA का structure। what is this? perfect well organization। smaller components भी होंगे, वो भी well organized structures हैं। But NCERT says the ordered nature of structure is likely to break down, right? It breaks down. And if this breaks down, the organism will no longer be alive. अगर ये ordered structure टूट गया, organism alive नहीं रहेगा। So we must keep on repairing and maintaining these structures. And since these structures are made up of molecules, they must move। तो यहां पे क्वेश्चन आएगा गिव रीजन। गिव रीजन क्या आएगा? व्हाई मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज नेसेसरी। यहां पे क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्वेश्चन आएगा? व्हाई इज मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी? व्हाट शुड बी योर आंसर? योर आंसर शुड बी living organisms are well organized structures. These well organized structures keep on breaking down. And if you need to maintain life, you need to keep on repairing and maintaining these structures. इसको maintain करने के लिए you need molecular movement। देख रहे हो कितना categorized way में it's written, everything is written in a very categorized way। Sir, there will be poll questions। Yes, beta, there will be 4 questions in the class, and I will also at the end of the class give you a test that you can attempt before tomorrow's class। ठीक है, क्लास के एंड 4 क्वेश्चंस क्लास के अंदर होंगे, क्लास के एंड में आपको एक टेस्ट मिलेगा गूगल फॉर्म वाला। वो टेस्ट आप कल की क्लास के पहले तक कर सकते हैं। कल की क्लास में वो डिस्कस होने के चांसेस हैं और फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? सो maintenance job, the processes which together perform this maintenance job। what maintenance? Maintaining, what is this maintenance it's talking about? Maintenance of ordered structure। these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown। energy is needed for them। so if you want to maintain, what is the first thing that you need? आपको चाहिए energy। सबसे पहले the first thing that you need is energy, right? so there must be a process to transfer a source of energy from outside the body to the organism। source of energy बाहर से अंदर आने के लिए चाहिए। and what is this source of energy? this is what you call food। food की definition क्या है? a source of energy that can help you prevent damage and breakdown। second reason क्या दिया गया? if the body size of organism is to grow, not all organisms grow is very much told here। NCERT आपको पहले से बता रही है कि सारे ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करते, बट अगर ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करना है तो रॉ मटेरियल चाहिए, एडिशनल रॉ मटेरियल विल बी नीडेड। सो व्हाट इज द सेकेंड रिक्वायरमेंट दैट इज फुलफिल्ड बाय न्यूट्रिशन? एनर्जी एंड मैटर। ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द 2 रिक्वायरमेंट जो आपका फूड पूरा करता है? पहला एनर्जी, दूसरा मैटर। ठीक है, अब आगे एनसीईआरटी बोलती है सिंस लाइफ ऑन अर्थ इज कार्बन बेस्ड है। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस। यानी एनसीईआरटी टोल्ड यू हाउ टू क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफाई जो ऑर्गेनिजम्स को करते हैं on the basis of auto and heterotroph is on the basis of कि कार्बन हमें कहां से मिल रहा है।
जो कार्बन का सोर्स है हमारा वो कितना कॉम्प्लेक्स है। देख रहे हो, एनसीईआरटी ने आपको सब कुछ बताया है। बहुत बार आप लोग मान लेते हो कि सर एनसीईआरटी से बाहर है, पर बेटा एनसीईआरटी के अंदर से है। इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट? चलो, outside sources of organism could be quite varied. The environment is not under the control of organism. These sources of energy therefore needs to be broken down or built up in the body. Broken down or built up in the body. Question आएगा, why do we convert glucose into ATP? क्योंकि हमारे पास ग्लूकोज का सोर्स हमेशा नहीं रहेगा. We don't always have glucose in our surrounding. आपके आसपास देखो, there is हवा, there is no glucose. But your body stores glucose and your body makes sure that they convert it into ATP so that ATP can be used for various molecular movements. Right? Okay. So for this, a series of chemical reactions take place. Oxidizing, reducing reactions are some of them. Now, oxidizing, reducing reactions. Chemistry में पढ़ के आते हो. Oxidation, loss of electron, भूलना मत. रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, भूलना मत, ये कॉन्सेप्ट यूज होता है बेटा. फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन. व्हाई डू वी यूज ऑक्सीजन? टू गेट एटीपी एंड टू कैरी आउट ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस फॉर आवर सेल्स. इसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं, राइट? व्हाट इज रेस्पिरेशन? ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्सेस फॉर सेल्यूलर नीड्स. ये रहा एनसीईआरटी का नेक्स्ट गूगली. बहुत बार जब रेस्पिरेशन का डेफिनेशन पूछा जाता है आप लोग लिख देते हो ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, बट यू नो एनसीईआरटी हैज डिफाइंड यू ब्रेक डाउन फूड फॉर सेल्यूलर नीड्स, दैट इज रेस्पिरेशन, राइट? अब यहां पे एनसीईआरटी स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट समथिंग इंटायरली न्यू. वो न्यू चीज क्या है? वॉट इज दैट न्यू चीज? मल्टी सेल्यूलैरिटी. बेटा दिस सेशन इज फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर बोर्ड्स. अभी जो बोर्ड्स दे रहे हैं उनके लिए, ये नए बच्चों के लिए नहीं है, डोंट वरी अबाउट, ठीक है? अगर नए बच्चे हैं उनके लिए नहीं है, ये बोर्ड्स अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? सो इन द केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, नो स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स for food taking is involved. Exchange of gases, waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. यहां से बन सकता है assertion reason question. क्या assertion reason बनेगा? Unicellular organisms do not need specific organs for taking in food. Assertion होगा unicellular organisms do not need organs for taking in food, for gases, for removal of waste. Reason होना चाहिए क्या? Because the entire surface of the organism is in contact with the environment. देखा कैसे छुपे हुए हैं क्वेश्चंस? देख लो बेटा, राइट? सो यू हैव टू, ये सेशंस ना आपके पूरे साल का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है. बिकॉज आप देखो, बहुत लोग एनसीईआरटी फोकस बहुत ज्यादा है, तो जो एनसीईआरटी फोकस्ड है बेटा, ये देख लो एनसीईआरटी का लेवल कितना अच्छा है, राइट? तो इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स सेल्स में नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. अब यहीं पे दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, राइट? यहीं पे दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाई स्पेशलाइजेशन इज नीडेड फॉर मल्टी सेल्यूलर बींग्स. यहां पे ही दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि मल्टी सेल्यूलर बींग्स के लिए स्पेशलाइजेशन की क्या जरूरत है. ओके गाइस, जस्ट गिव मी वन क्विक मोमेंट. आई थिंक आई नीड टू ट्वीक थिंग्स अ लिटिल बिट. या दिस इज गुड. पूरा दिख रहा है अब एटलीस्ट. ठीक है, ओके. स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है? स्पेशल सेल आपके बॉडी का स्पेशल काम कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, आपके लंग्स के जो सेल्स हैं, जो एल्वियोलाई के सेल्स हैं, वो इस तरीके से बने हुए हैं दैट इट कैन डू एक्सचेंज एट द बेस्ट रेट.
The cells of your heart is made in such a way so that it can contract and give you a rhythm. Right? So guys, that is why you can clearly see, तो यहाँ पे question आ सकता है specialization क्यों needed है, because cells are not in direct contact, hence they need to pick up specific roles. We are familiar with the ideas of specialized tissues. Why we are familiar? Because इससे efficiency आती है, right? But specialization से एक problem भी आती है, right? Specialization से एक problem भी आती है. What is the problem? This poses a problem. Since the food and oxygen are now taken up at one place, this creates a need for transportation. Assertion and reason. तीसरा assertion reason question यहां से उठ के आ जाएगा कि multicellular organisms cannot survive without transportation mechanisms. Why? Because of specialization, food is gathered in a certain place. है ना? फूड जो है सर्टेन प्लेस पे ही गैदर हो रहा है, तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा. व्हाट इज स्पेशलाइजेशन? स्पेसिफिक सेल्स पिक अप स्पेसिफिक रोल बेटा, दैट इज स्पेशलाइजेशन. शिवम, स्पेसिफिक सेल्स पिकिंग अप स्पेसिफिक रोल्स, यही स्पेशलाइजेशन है. ठीक है. When chemical reactions use the carbon source and the oxygen for energy generation, they create byproducts that are not useless. Sorry, that are only useless. चौथा assertion reason question यहां से बन सकता है. What is the need for excretion? When you convert the food into the substances that you require, contact with environment. आपका skin is in contact with the environment बेटा, right? आपका skin is in contact with the environment, but it cannot take in gases. Why? Because it is dead. Why is it dead? For protecting you. Right? Only your lungs is in contact with the gases. आपका lungs ही सिर्फ exchange कर सकता है. But अगर आपके पास transportation नहीं होता कुंदन, तो gases जो lungs ने ली वो हाथ पैर तक नहीं पहुंचते. They would have never ended in हाथ पैर. Why are they ending up in हाथ पैर? Because of the transportation system. Right? So these waste therefore need to be removed by the body and discarded by a process called excretion, and hence एक नया आ गया लाइफ प्रोसेस एक्सक्रीशन. तो बेसिकली आपकी एनसीईआरटी ने आपको न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन का लॉजिकल सिग्निफिकेंस समझा दिया. व्हाई आर दीज लाइफ प्रोसेसेस समझा दिया. ठीक है, व्हाई आर दीज फॉर लाइफ प्रोसेसेस समझा दिया. राइट? चलो, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइफ प्रोसेस टुडे, दैट इज न्यूट्रिशन. स्टार्ट करते हैं. So when we walk, ride, we use up energy. Why do we need nutrition? ये हमने पहले इस्टेब्लिश कर लिया. We need nutrition. Nutrition के दो रोल होते हैं. वो आपको बाहर से लाके एनर्जी देता है और बाहर से लाके मैटर देता है. It gives you energy, it gives you matter. Why do you need matter? Because you need to grow, you need to develop, synthesize proteins and other substances needed by the body. इसलिए आपको nutrition चाहिए. How do living organisms get their food? Let me move to the other side. मैं दूसरे साइड मूव होता हूं ताकि आप इस साइड देख पाओ. Yep, this is better. So guys, I'll be moving this and that side. ठीक है, मैं इधर से उधर मूव होता रहूंगा ताकि आपको पूरा कुछ दिख पाए. ठीक है, कूल है बेटा. So how do living things get their food? The general requirements of energy and material is common. सबको चाहिए ना. Some organisms use simple food material from inorganic sources. अभी पहले पेज में एनसीईआरटी ने डिफाइन किया था कि न्यूट्रिशन के टाइप्स हम कैसे डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज द सोर्स ऑफ कार्बन. सोर्स ऑफ कार्बन क्या हो सकता है? एनसीईआरटी टेल्स यू इट कैन बी इनऑर्गेनिक in form of carbon dioxide and water. And what are the examples of these? Plants and some bacteria. इसको क्या कहेंगे? हम कहेंगे इसको autotrophs. Next category is heterotrophs. Heterotrophs use complex या organic, ये देखो complex substances जिनको तोड़ के हम simple substances बनाएंगे. Right? Now इस पे एमसीक्यू आ सकता है. What are enzymes? They are biocatalysts. They speed up the rate of reaction. They speed up these breaking down and building up reactions.
हीटरोट्रॉफ का एग्जांपल एनसीईआरटी ने दे दिया, एनिमल एंड फंजाई, राइट। ओके, अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे आते हैं। एनसीईआरटी सेज कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। दिस इज वन स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू। ये सही नहीं है। क्यों? सारे ऑटोट्रॉफ्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते। सारे ऑटोट्रॉफ्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते। आप जब हायर ग्रेड्स में जाएंगे, यू विल टॉक अबाउट कीमोसिंथेसिस एज वेल। आपके लेवल पे एनसीईआरटी इज ओके टू राइट दिस स्टेटमेंट बिकॉज you do not know about those organisms and there are very few organisms who can do this. तो इसीलिए एनसीईआरटी हैज टोल्ड सिंपली कि कार्बन और एनर्जी दोनों ही ऑटोट्रॉफ फोटोसिंथेसिस से लेते हैं। Now, it is the process by which autotrophs take substances from outside, convert them into stored forms of energy. Carbohydrates are utilized, है ना? Carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch. तो photosynthesis क्या कर रहा है? What is photosynthesis doing? It is making carbohydrates. This carbohydrate can be used or it can be stored. किस फॉर्म में stored होगा? It can be stored in the form of starch. NCERT's point. कीमोसिंथेसिस के लिए अभी छोड़ दो बेटा, बोर्ड्स है, अभी कंफ्यूज मत हो। कीमोसिंथेसिस आप पढ़ोगे, ठीक है? ओके, you'll read about chemosynthesis later on in part. ओके, इतना क्लियर है? अब देखो प्लांट्स में, इन प्लांट्स, लेट मी मूव टू द अदर साइड नाउ। अब मैं दूसरे साइड पे मूव, गाइस आई विल बी स्विचिंग बिटवीन, है ना? मैं स्विच करता रहूंगा बिकॉज यू नो एनसीईआरटी पेजेस, व्हाट एम आई डूइंग? आई एम मूविंग द रॉन्ग थिंग। यप, ठीक है, लेट मी मूव माई सेल्फ। ओके, नाउ अब NCERT has told you that plants store it in form of starch, but they have also told you that animals store it in a different form, right? A somewhat similar situation is seen in where the energy derived from the food we eat is stored in the body in form of glycogen. What is glycogen? What is starch? Glycogen and starch are different types of carbohydrates. They are all different types of carbohydrates. Starch plants में होता है, glycogen animals में होता है, right? तो बेटा एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ेंगे तो मतलब बोर्ड्स क्या, आपका एनटीएससी क्लियर है बेटा, बट ध्यान से पढ़ना जरूरी है। नाउ लेट्स लुक एट दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन ही बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। CO2 12H2O gives glucose and 6 oxygen and 6 water. How glycogen is formed? Not required बेटा। ग्लाइकोजन इज अ पॉलीसैकेराइड। देखो बेटा वही बात है ना, अभी आपका लेवल उतना नहीं है। बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को जोड़ के हम ग्लाइकोजन बनाते हैं। मंगलम वी ज्वाइन अ लॉट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म ग्लाइकोजन। बस उतना दूर मत जाओ, यू विल ओनली बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट जब आप 11th ग्रेड में जाओगे। देयर इज अ लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड स्टफ दैट यू डोंट नो नाउ, इसलिए ठीक है। सो गाइस 12 water molecules are consumed and 6 water molecules are produced. Okay, guys, I'm so sorry. There's a phone call unexpected. I just need to disconnect it. Don't worry, I'll be back in any moment, and I'm putting this on mute. Yep. Okay. Is cyanobacteria autotrophic? Yes, beta. Cyanobacteria is autotrophic. ठीक है, अब देखो 12 water molecules consume हो रहा है, 6 water molecules are being produced. All 12 are consumed but 6 are produced. ऐसा नहीं है कि 12 लिया था, 6 यूज किया, 6 को वापस छोड़ दिया, नहीं, that's not going to happen. ठीक है? सुमन बेटा the class would continue for I think till 145 or 50. Okay. सो CO2 को लिया, वाटर को लिया और ऑक्सीजन और वाटर को रिलीज किया।
Now the events of photosynthesis. This is where things become really messy. Your NCERT gives you 3 steps. What are the 3 steps? Absorption of light energy, conversion of light to chemical energy, very important part, and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen. The first 2 steps beta, ये जो first 2 steps है, ये जो first 2 steps है, this is light reaction. इसी को light reaction कहते हैं because this cannot undergo without the help of light. बिना light के ये हो ही नहीं सकता. What is the product of light reaction? Chemical energy. हमें chemical energy चाहिए था. Now the second step of this reaction, the second step is we use the chemical energy. हम chemical energy का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं. I hope you remember what does reduction mean. Reduction का मतलब है gain of electrons, यानी there would be more bonds, है ना. सर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्लोरोफिल कैटलिस्ट है. आई डोंट थिंक वी कैन कॉल इट अ कैटलिस्ट, बट इट्स कैटलिस्ट स्पीड्स अप अ रिएक्शन. क्लोरोफिल इज वेरी मच अ पार्टिसिपेंट. लीजा गाइस सुनो यहां पे देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जो अभी नए वाले, जो अभी 10th ग्रेड में आए हैं, राइट. आई अंडरस्टैंड योर क्यूरियोसिटी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी ये स्पेसिफिक क्लास बेटा बोर्ड के लिए है. इसीलिए आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ वर्ड्स लाइक कीमोसिंथेसिस or glycogen formation. If this was a newer batch, I would have, but यहाँ पे I'm not going into the details because अभी boards के students को I do not want to burden with any new terms or new stuff, right? So I have a doubt. In chemistry it is given that 6 carbon molecules react with 6 molecules of water to form, but बेटा because अगर आप 12 में से 6 माइनस करो तो 6 बचेगा, right? 12 में से 6 माइनस करो तो 6 बचेगा. दैट इज वाई अगर 6 भी लिखा हुआ है दैट्स ओके. इवन इफ 6 इज रिटन दैट्स ओके. बेटा न्यू सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड बैचेस कॉल्ड लक्ष, आधार एंड तेजस. तेजस इज फॉर CBSE, Laksh is for CBSE and state boards, Aadhaar is for foundation. 3 new batches have already been launched. This is for students who are going to appear in their board exams this May में जो board exams appear करेंगे, ठीक है. Now this is the another googly of NCERT. What is this googly? These steps need not take place one after the other. जरूरी नहीं है कि पहले लाइट आएगा, फिर केमिकल एनर्जी क्रिएट होगी, फिर केमिकल एनर्जी का यूज होगा रिडक्शन में. ये एक दूसरे के बाद भी हो सकते हैं. एज लॉन्ग एज यू हैव केमिकल एनर्जी क्रिएटेड बाय द सनलाइट अवेलेबल, द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन हैपन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. द स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस ईच वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली. एग्जाम्पल दिया है, desert plants take up carbon dioxide at night, convert it into an intermediate and use it during the day. This is a very important paragraph. ठीक है. डेजर्ट प्लांट्स रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसको एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करके सुबह में यूज कर लेते हैं, राइट. सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ दैट यू शुड अंडरस्टैंड while understanding photosynthesis. Now we have to also look at this. ये डायग्राम को भी समझना बहुत जरूरी है. Let me move to this side. Okay. Now ये क्या है? क्रॉस सेक्शन. आई शुड बेटर से दिस इज एन LS, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. क्रॉस सेक्शन नहीं कह सकते, बट ठीक है, NCERT ने कह दिया तो ठीक है. सो व्हाट आर द थिंग्स दैट्स इंपॉर्टेंट हियर? व्हाट इज दैट इंटरमीडिएट? बेटा मैलेट, उसको मैलेट कहते हैं, बट नहीं जानना, आपको कभी नहीं पूछेगा अभिषेक. दे विल नेवर आस्क यू. ओके. नाउ अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस लेबल करने आ सकता है. वैक्सी क्यूटिकल. Cuticle is made up of a substance called cutin. Then there's a lot of chloroplast in this, and this is called as pellicid parenchyma. Beta, this is not a TS. TS is transverse. Transverse मतलब latitude. LS मतलब longitude. This is not a TS.
ठीक है बेटा, दिस इज एन LS, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनली काटा, लॉन्गिट्यूड नॉर्थ साउथ होता है ना, तो लीफ के पत्ते को लॉन्गिट्यूडनली काटा। वर्क तो नहीं पूछेगा ना बेटा, क्यों नहीं पूछेगा, जरूर पूछ सकता है। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस कहां हो रहा है, इन दी पैलाइसेड पैरेन्काइमा, ऑल्सो नोन एज मेसोफिल। इंटरमीडिएट इज मैलेट बेटा अभिषेक, बट इट विल नेवर बी आस्क्ड, ठीक है। ओके, now they have told you that these green dots have chloroplasts and chloroplasts contain chlorophyll, and that is where all of this happens. Okay, अब ये experiment I'm not going to go into detail because it's clearly step by step fashion, ठीक है। What I am going to discuss is something that comes later on. Okay, let's try to talk about stomata now, ठीक है। Massive amounts of gaseous exchange takes place through this. Okay, but it is important that the exchange of gases occurs across the surface of stems, roots and leaves as well. Massive amount कहां से होगा, स्टोमाटा से, बट इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी जगहों से होता ही नहीं है, राइट? इसका यह मतलब नहीं कि बाकी जगहों से होगा ही नहीं. So you should be able to understand that. Opening and closing of stomata, right? Opening and closing of pore is a function of the guard cells. The guard cells swell when the water flows into them. Opening and closing के ऊपर question आ सकता है, right? You can be asked a question open over the opening and closing of the stomata. So this is the open stomata, this is the closed stomata, right? Okay, so you should be able to understand these things. फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल के ऊपर क्वेश्चन है, सॉरी एक्टिविटी, आई एम नॉट गोना गो इनटू द डिटेल बिकॉज प्रेटी सिंपल दिया गया है, ठीक है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे ऑटोट्रॉफ्स की, हाउ डू दे मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, राइट? बट डू वी नीड अदर, व्हाट अबाउट द अदर, बट दे आल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल्स लाइक मिनरल्स. So other materials like nitrogen, phosphorus, iron, magnesium are taken up from soil, right? They are taken up from soil. Sir, are chloroplasts also present in guard cells? Yes, beta, ask me, they are. ठीक है, okay? चलो, अब आते हैं heterotrophic nutrition पे. Now we will try to talk about heterotrophic nutrition, and let me go back to this side. Okay, so I will keep on flipping between sides so that you can read it very clearly. Variegated मतलब कुछ patches green, कुछ patches yellow. Each organism is adapted to the environment. The form of nutrition differs depending on the type and availability of food. यानी they are going to tell you the types of heterotrophic nutrition. क्या क्या types हैं? Right? There is a range of strategies. Some organisms break the food outside the body and then absorb. Yani NCERT is telling you about saprotrophs. Right? Some organisms derive without killing them. Yani NCERT is telling you about parasites. Example भी दिया इन्होंने, Cuscuta, also called amabale. ठीक है, अब आते हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन पे. फर्स्ट हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे एक एग्जांपल, दैट इज ऑफ एमीबा. अब बेटा ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, दिस डायग्राम इज प्रीटी इंपॉर्टेंट एंड इट कैन बी आस्क्ड इन अ वैरायटी ऑफ वे. सिंपल बोल देंगे, ड्रॉ करके बताओ, राइट? सो यू हैव टू शो दिस प्रोसेस जिसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस. ओके, नाउ amoeba. How does amoeba takes food? Temporary finger-like projections. What is this finger-like projections called? Pseudopodia. Right? So inside the food vacuole, कहां पे digestion होगा? Inside the food vacuole, they are broken down and then they diffuse into the cytoplasm. Sir, amoeba में holozoic होता है ना बेटा? Holozoic, a type of heterotrophic.
सर इट इज ऑल्सो नोन एज एंडोसाइटोसिस। बेटा यही पे लोग कंफ्यूज होते हैं। एंडोसाइटोसिस दो तरह के होते हैं, फैगो एंड पीनो। फैगो का मतलब आप सॉलिड पार्टिकल ले रहे हो, पीनो का मतलब आप लिक्विड पार्टिकल ले रहे हो। दैट्स इट, दैट्स द डिफरेंस। पारामीशियम का एग्जांपल भी दिया है। नाउ द सेल हैज अ डेफिनेट शेप एंड फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट। और फूड वहां तक कैसे आएगा? मूवमेंट ऑफ सीलिया। तो पैरामीशियम के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना। यू विल से सर बहुत लोगों ने सोचा होगा कि पैरामीशियम तो एनसीईआरटी ने बताया नहीं, बट यू कैन क्लियरली सी दैट एनसीईआरटी हैज टॉक्ड अबाउट पैरामीशियम। ठीक है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, राइट? Various regions are specialized to perform different functions. What functions? That is what we will be closely looking at. The food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture. Why do we need digestion? यहां पे क्वेश्चन आ सकता है, डाइजेशन की क्या जरूरत है? तो अभी एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया कि food needs to be converted into a smaller size so that it can travel within your body. बेटा होलोजोइक का मतलब है all 5 steps are happening. Ingestion, खाना खाना. Digestion, you are breaking them down. Absorption, you are absorbing it into some organ or a place. Assimilation, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो to do the respective job. Egestion, you are throwing them out. जो कचरा था, जो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाए, you threw them out. ठीक है। So the lining of the canal is soft and the food is also wetted to make its passage smooth. ये माउथ की बात कर रहे हैं। We are talking about the salivary glands, and the salivary gland can and has enzymes called salivary amylase. Right? What is the job of salivary amylase? To break it into simple sugars. Right? तो complex molecule to give simple sugars. नथिंग न्यू, सिंपल है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, आई एम वेरी श्योर, राइट? नाउ द लाइनिंग ऑफ द कनाल हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली टू पुश द फूड फॉरवर्ड। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। पेरिस्टाल्सिस, नाउ मेनी पीपल थिंक पेरिस्टाल्सिस सिर्फ एसोफेगस में होता है, बट नो, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स अकर ऑल अलोंग द गट, पूरे गट में होगा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कैन अकर ऑल अलोंग द गट। व्हाई? सारे गट में मस्कुलर मूवमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है। सो फूड इज टेकन फ्रॉम द माउथ, द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन। अगेन स्टमक के बारे में है। स्टमक में कौन से ग्लैंड्स हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। ये ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दे सिक्रीट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एसिडिक मीडियम and facilitates the action of enzyme pepsin. very important. बेटा एलिमेंट्री कनाल का दूसरा नाम गट भी है। ओके, नाउ गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली जो एनसीईआरटी ने यहां नहीं बताई है वो ये है दैट पेप्सिन इज सिक्रीटेड इन इनएक्टिव फॉर्म कॉल्ड पेप्सिनोजेन. पेप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन बाय HCl. Once enough pepsin is created, pepsin can activate itself as well. NCERT hasn't told this directly, but it has talked about the HCl facilitating the action of enzyme pepsin. Diaphragm पे आएंगे बेटा. What is peristaltic movement बेटा? Contraction and expansion of the wall. अगर ये आपका food pipe है, it contracts and expands, contracts and expands. So if you see it like this, it will contract and expand. क्यों? फूड को नीचे धकेलने के लिए, टू सेंड द फूड डाउनवर्ड्स. ठीक है. एसिडिटी, टू मच ऑफ एसिड. एग्जिट ऑफ फूड इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल. एमसीक्यू में आ सकता है. ठीक है. फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल. एक्सटेंसिव कॉइलिंग के बारे में बताया गया है, बट यहां पे दे हैव टॉक्ड अबाउट मोर, है ना. बेटा रोल ऑफ HCl क्या है? पहला, इट विल पार्टिसिपेट इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. दूसरा, एक्टिवेट पेप्सिन. तीसरा, इट ऑल्सो किल्स हार्मफुल पैथोजेंस. ठीक है, 3 जवाब आपको पता होना चाहिए. ओके. रेनिन बेटा बच्चों में होता है. दे आर ओनली फाउंड इन इन्फेंट्स फॉर द डाइजेशन ऑफ मिल्क विच इन्फेंट्स कंज्यूम अ लॉट.
ठीक है, स्फिंक्टर मसल जहां पे भी एंट्री या एग्जिट को रेगुलेट करना होता है बेटा, जैसे एनल स्फिंक्टर एनस के पास होगा, गैस्ट्रिक स्फिंक्टर स्टमक में होगा, है ना। सो स्टमक के एंट्री में स्फिंक्टर होगा, स्टमक के एग्जिट में स्फिंक्टर होगा, एनस के एग्जिट में स्फिंक्टर होगा। ये एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करते रहेंगे, दे विल कीप ऑन कंट्रोलिंग दिस। ठीक है, चलो। Length of small intestine differs in animals depending upon the food they eat. Herbivores eating grass need a longer small intestine so that cellulose को ज्यादा समय मिले. Assertion and reason question. बेटा म्यूकस इज a slimy substance जिसकी लेयर आपके हर इंटरनल ऑर्गन में होती है. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. बहुत लोग क्या सोचते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन होगा. भैया लार्ज इंटेस्टाइन जो ठहरा, बट नहीं बेटा, इट इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन जहां सबसे ज्यादा डाइजेशन एब्जॉर्प्शन 90 to 95% ऑफ डाइजेशन यहां खत्म हो जाता है. राइट जो बचा कुचा एब्जॉर्प्शन है, that is what happens in the large intestine. The food coming from stomach is acidic, has to be made alkaline. For the pancreatic juices, bile juice from liver accomplishes this in addition to acting on fats. तो bile juice जो है वो आपका क्या करता है, आपके फूड को alkaline बनाता है. क्यों alkaline बनाता है? ताकि पेनक्रियास काम कर सके. Another assertion and reason question hidden right in your NCERT. What is the function of mucus? बेटा फंक्शन म्यूकस का है कि पेट के लाइनिंग को बचा कर रखे. पेट जो एसिड सिक्रीट होता है उससे खुद डाइजेस्ट ना हो जाए, इसलिए. ओके, नाउ पेनक्रियास सिक्रीट पैंक्रियाटिक जूस which contains enzymes like trypsin for food for proteins, lipase for fats, है ना. इंटेस्टाइनल जूस भी हमें मिलता है, राइट. What do? They break proteins into amino acids, complex carbohydrates into glucose, and fats into fatty acid and glycerol. This can be asked as an MCQ. बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं कि प्रोटीन्स को तोड़ के क्या बनाएंगे, अमाइनो एसिड्स बनाएंगे. कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ के क्या बनाएंगे, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज बनाएंगे. फैट्स को तोड़ के क्या बनाएंगे, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बनाएंगे. सच क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली. ठीक है, अब हमें चाहिए सरफेस एरिया. तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया. वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द बोर्ड इज दिस वन. बार बार पूछते हैं अलग अलग तरीकों से. ठीक है, अनअब्सॉर्ब्ड फूड इज सेंट टू द लार्ज इंटेस्टाइन, राइट, वेयर इट्स वॉल अब्सॉर्ब मोर वाटर एंड द रेस्ट इज रिमूव्ड बाय द एनस, रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर. बेटा ये क्लास इंट्रोडक्शन नहीं है, ये क्लास बोर्ड्स अपियरिंग स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ये सारी चीजें पढ़ ली है, बस एनसीईआरटी रिव्यू कर रहे हैं. ये इंट्रोडक्शन क्लास नहीं है बेटा. दिस इज नॉट फॉर न्यू स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर स्टूडेंट्स हु आर अटेम्प्टिंग बोर्ड दिस ईयर. ओके, चलिए कमिंग टू द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज द रेस्पिरेशन. ठीक है, नाउ रेस्पिरेशन के लिए व्हाट डू वी नीड टू अंडरस्टैंड. डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स absorb gases, some use oxygen to break down glucose completely, others use pathway that do not involve oxygen. यानी कि हमें क्या चाहिए, we need energy. एनर्जी को यूज करने के लिए कुछ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का यूज करते हैं, कुछ नहीं करते. इन ऑल केसेस, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, सारे केस में द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरुवेट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू की टाइप से भी आ सकता है. Okay. This process takes place in yeast during अब pyruvate जो है, this process takes place where in the cytoplasm. फिर से लिखा हुआ. Further pyruvate को convert कर सकते हैं इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, और you can also convert them into lactic acid. This are all anaerobic respiration. ये चार्ट, this chart can be asked, है ना. अब मस्कुलर क्रैम्प्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. व्हाट कॉजेज मस्कुलर क्रैम्प्स, दैट इज अ लॉट ऑफ लैक्टिक एसिड. अगर बहुत ज्यादा लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो गया तो भी. ठीक है, ओके, इतना क्लियर है बेटा.
यह देखो बहुत कुछ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. इफ यू गो थ्रू एनसीईआरटी इन दिस फैशन, स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेटमेंट्स को पढ़कर समझने की कोशिश करोगे, इस तब फायदा होगा. बट यू नीड टू डू इट, है ना, यू नीड टू डू इट. करेंगे तो होगा. अब कल की क्लास में आप ये कर आना. आज तो देखो न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन है ना. कल की क्लास होगी ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन पर. आप ये कर आना और फिर आप मुझे बताना. लैक ऑफ ऑक्सीजन को एनेरोबिक कहते हैं बेटा. एरोबिक मतलब ऑक्सीजन, एनेरोबिक विदाउट ऑक्सीजन. Energy released by cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP. ATP is broken down, giving rise to energy. ठीक है. So ATP का conversion भी दिया हुआ है. Okay. Define specialization. Beta, specialization is when cells become very specific in structure and function. That is specialization. जब cells बहुत specific हो जाते हैं structure function में. ठीक है. So since aerobic respiration pathway depends on oxygen, aerobic organisms need to intake oxygen. कैसे लेंगे? स्टोमाटा से ले सकते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस जहां होते हैं. ठीक है. ये सर ये 3 से पूछेंगे कैसे, लॉस, लैक और एब्सेंस. बेटा बोलेंगे व्हाट आर द 3 पाथवेज. ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है कुंदन. व्हाट आर द 3 पाथवेज बाय विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन. आपको वो तीनों बताना पड़ेगा. ठीक है. Now the direction of diffusion depends on the environmental conditions. At night when there is no photosynthesis, CO2 elimination is a major exchange. Very important question. पूछा जाएगा MCQ में, नाइट में प्लांट्स कौन सा गैस छोड़ेंगे. You should be knowing कि रात में फोटोसिंथेसिस बंद है तो CO2 ही सब छूटेगा. But oxygen release is the major event in the morning. तो मॉर्निंग में क्या और इवनिंग में क्या, यू शुड नो. ये पूछा जा सकता है. एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट ऑर्गन्स टू अपटेक ऑक्सीजन एंड गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. लेट अस टॉक अबाउट दैट. अब एनसीईआरटी एक्सप्लेन्स सिंस द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज फेयरली लो इन कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स इज मच फास्टर. एजोशन रीजन क्वेश्चन आ सकता है. राइट. C3H6O3 आई गेस नेहा, बट आपको नहीं चाहिए. यू डोंट नीड दैट, है ना. यू डोंट नीड दैट. सो गाइज अगेन एनसीईआरटी टेल्स यू दैट पानी में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होता है, सॉरी बहुत कम ऑक्सीजन होता है. इसीलिए आपका जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है दे ब्रीद अ लॉट, देयर ब्रीदिंग रेट इज फास्टर. सो फिशेस टेक वाटर एंड देन दे फोर्स इट वाया देयर गिल्स. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स they are absorbed by different organs, right? All these organs have structure that increases the surface area. So what is the role of alveoli? Alveoli का function role आ सकता है. What is the role of alveoli? They increase the surface area. ठीक है. Okay, human beings air is taken into the body through nostrils. The air passes and is filtered by nostrils. Rings of cartilages, normal stuff. ठीक है. Coming to this, within the lungs the passage divides and subdivides to finally terminate in balloon-like structures which we call alveoli. अब यहां पे लोग कंफ्यूज होते हैं. कंफ्यूज क्यों होते हैं बेटा? 1 डब्बा इज alveoli, दिस पूरा इज alveolar sac. ये एक जो डब्बे है ना ये alveoli है. ये पूरा जो बंच है दैट इज द alveolar sac. Don't get confused here, है ना. यहां पे कंफ्यूज मत होना. Alveoli provides a surface area, right? We breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm. Mechanism of breathing. We lift our ribs, we flatten our diaphragm, chest cavity becomes larger. इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है. Explain the mechanism of breathing. ठीक है. Now, next important point. When we breathe out, complete breathe out करने के बाद भी आपके lungs में थोड़ा ऑक्सीजन बचता है. Why? There's always a little oxygen because we want sufficient time for oxygen to be absorbed. Right? So, sufficient time हमें चाहिए ताकि ऑक्सीजन absorb हो सके. बेटा चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस.
लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज, द बॉडी साइज लार्ज होगा, डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी। उस समय डिफ्यूजन अकेला काम नहीं कर सकता। व्हाई? इट्स वेरी स्लो, राइट? In human beings, the respiratory pigment hemoglobin has a very high affinity for oxygen. Assertion reason question यहाँ पे बन के आ सकता है, give reason question बन के आ सकता है। What is the advantage of having hemoglobin? Hemoglobin increases the carrying capacity of oxygen because it has high affinity. है ना? इतना क्लियर है? Okay, is this much cool? Okay, carbon dioxide is more soluble in water than oxygen and hence mostly transported and dissolved. इस पे भी MCQ आ सकता है. Okay, affinity मतलब more attraction. ठीक है, affinity का मतलब more attraction है. Okay, so guys, are you guys ready for questions now? बेटा डबल सर्कुलेशन करेंगे कल की क्लास में, नॉट इन टूडेज क्लास। आज की क्लास में नहीं, कल की क्लास में विल डू दैट। ठीक है? ओके गाइज, आई होप यू रियलाइज्ड दैट एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है, राइट? आई होप यू रियलाइज एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है। Now let us solve a few questions. ठीक है? Can you explain the mechanism of breathing? बेटा, lift the ribs, flatten the diaphragm. Volume increase हो गया lungs का। जैसे lungs की volume capacity increase हुई, pressure जो है it will force the oxygen inside. वापस क्या होगा? Because muscles ने ribs को बाहर pull किया और diaphragm को flatten किया, the muscles will relax. जैसे muscles relax करेंगे, you will get the water, get the gas outside. ठीक है? I don't know what happened. Guys, just give me a moment. Okay, go ahead. चलो. Now these questions are based on what we covered in this class. बेटा आकांक्षा, नया सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आज मेरे ही 2 क्लासेस हैं। आज लक्ष्य भी स्टार्ट हो चुका है, तेजस भी स्टार्ट हो चुका है। आज ही फर्स्ट क्लास, बायो की फर्स्ट क्लास आज ही है, रात 6:30 बजे है, 8 बजे है, राइट? सो गाइज, इफ यू पीपल हैवंट एक्सप्लोर्ड दी सब्सक्रिप्शन, जरूर एक्सप्लोर कीजिए, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ सब्सक्रिप्शन यू कैन अटेंड एनी क्लास अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस एंड गोल्स, है ना? अगर आपको सीबीएसई कंप्लीट करना है, तेजस। अगर आपको सीबीएसई और स्टेट बोर्ड पूरे साल भर आराम से कंप्लीट करना है, देन यू हैव लक्ष्य, अदरवाइज यू हैव आधार। सो गाइज, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज द मस्ट कैरेक्टरिस्टिक फॉर लाइफ। अभी हमने देखा। अगला क्वेश्चन गाइज, इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट कॉज द ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू डू डैश। अभिनव बेटा, दैट इज आई हैव ऑलरेडी टेकन डाउन दैट रिक्वेस्ट। जो अगली क्लास होने वाली है उसमें वही होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होंगे। ठीक है, चलिए। इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट कॉजेज द ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू डू व्हाट? ओके, गुड। सो गाइज, ब्रेक, है ना? जो ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स हैं, दे ब्रेक बिकॉज वी वांट डिसऑर्डर, एवरीथिंग वांट्स डिसऑर्डर, दैट इज व्हाई दे ब्रेक, एंड इसीलिए हम एनर्जी और मैटर कंज्यूम करते हैं, सो दैट वी कैन टेक केयर ऑफ दिस। फूड फॉर ऑर्गेनिजम्स इज द सोर्स ऑफ। ये बेटा वन शॉट लेक्चर्स अभी, आई गेस आई एम नॉट श्योर अबाउट इट राइट नाउ, बट दे हैव बीन ऑलरेडी प्लान्ड,
but not here. Okay, chalo, come on guys. Chaliye, everyone, guys, come on. Food for organisms is a source of what? Very good, guys. Food for the organisms, they are a source of energy, raw materials for growth, raw materials for repair, or all the above. Very good. They are a source for raw materials and as well as energy. Okay, not just energy, beta. Unicellular organisms do not need specific organs to exchange gases because specialization पे question है. चलिए. So guys, the remaining classes that we have left, जो remaining 4 classes हैं, हर दिन ऐसे ही होगा. We will do NCERT. हम NCERT करेंगे. NCERT करने के बाद we'll practice a few questions. 4-5 questions class में practice करेंगे. And there will be a test later on based on the concepts discussed in the class. आज का टेस्ट आपको फॉर्म का लिंक आ चुका है चैट में, राइट? You can find the link in the chat box. वहां से आप वो टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट? You can attempt the test from the chat box after this class. आज की क्लास के बाद you can attempt the test, right? So yes, the correct answer is they can, if needed, exchange gases from the body which is in contact with the environment. Unicellular organism का पूरा body ही उनके environment के contact में रहता है. So guys, जैसे कि मैंने पहले बोला था, life process 1, nutrition and respiration आज complete हुआ. We are going to do transportation excretion tomorrow, फिर reproduction, heredity and our environment. So this is going to be very easy. 5 से 11 April at 1 PM. Remember, Wednesday और Thursday नहीं. These are the days I am on leave. बेटा अगर नहीं आया है, let me just do public view on. मैंने अभी भी public view on किया है. And now I'm going to paste it again. ये रहा, ठीक है? Okay. So guys, remember, right now there's a bunch of courses that you can benefit from. आप बहुत सारे courses से benefit कर सकते हैं. What are these courses? You know that with the Gradeup का super subscription लेते ही आपको इन सभी courses का access मिल जाता है. For example, bridge course for people जो, okay, sorry, this is from 8 to 10. You have lakhs, you have आधार. आपके पास 2 अभी अवेलेबल होते हैं, लक्ष्य एंड आधार. व्हाट इज लक्ष्य? लक्ष्य इज बेटा CBSE प्लस स्टेट बोर्ड्स. एंड व्हाट इज आधार? आधार इज फाउंडेशन. फाउंडेशन मतलब आप अगर NTSE, साइंस ओलंपियाड्स जैसी चीजों की तैयारी करना चाहते हैं, आधार इज अ गो टू थिंग, राइट? आधार ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लक्ष्य भी स्टार्ट हो चुका है. आई थिंक बायो की ही पहली क्लास है जो आज होने वाली है. तेजस is a short course only of 4 months जिसमें सिर्फ CBSE खत्म होगा, बट बहुत ही जल्दी, right? So guys, these are the array of courses that you can opt from, right? We'll come back and tomorrow and we'll pick on there. Test का link आपको मिल चुका है. Make sure that you attempt it before tomorrow. कल की क्लास के पहले attempt जरूर कर लेना, ठीक है guys? चलो आज के लिए इतना ही. Take care. Have a good day. We'll meet soon. Bye-bye.